हालेलुया। मसीह की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 6 बाब आयत नंबर 16 से 18 आयत तक हम तलावत करेंगे। यूं लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो बशीरगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो बशीरगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक में पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और अमल किए जाने पर खुदा की सताइश। आमीन। तशरीफ रखें। रोजा के तल्लक से आज ये हमारा दूसरा मैसेज है, ताकि हम रोजा को बेहतर और अच्छे तौर से बाइबल मुकद्दस में से सीख सकें। अब आपने अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाना है और तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि प्रेयर एंड फास्टिंग, दुआ और रोजा मसीही जिंदगी के लिए बड़ा अहम है। रोजा रे वाव, रे और वाव यानी पानी का बहाव, रो पड़ना, रोने लगना, रो देना, बर्दाश्त ना करना। और इसका दूसरा हिस्सा है जा, रोजा, रेवारो जे है जा, रोजा। जा का मतलब है औलाद जनना, इसका मतलब शाबाशी भी है, इसका मतलब मरहबा भी है, इसका मतलब झालर भी है और इसका मतलब अनाम भी है। लेकिन हम रोजा के माना में इसको देखेंगे। रोजा हरूफ तहज्जी के 4 हरूफ से मिलकर एक लफ्ज बना है जो कि रोजा है। रे वाव जेन ए। रे रियाजत, मुझे और आपको जिस्मानी रियाजत की भी जरूरत है और हमें रूहानी रियाजत की भी जरूरत है। जब हम रोजे रखते हैं तो हम जिस्मानी रियाजत में भी होते हैं और रूहानी रियाजत में भी। वाव वावेला, वाव वावेला, वावेला अपनी बेबसी पर करना, अपने आप पर वावेला करना, अपने गुनाहों पर वावेला करना, पछताना, इकरार करना से ज़दा यानी मुसीबत ज़दा। और आज के इस दौर में हर शख्स मुसीबत ज़दा है, हर शख्स परेशान है, हर शख्स दुखों में से गुजर रहा है। हे हाथ उठाना और खुदा के हजूर क्या करना, दुआ करना। जब आप रोजा रखेंगे, अगर दिल से रोजा रखेंगे, अगर ईमान के साथ रोजा रखेंगे, अगर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर कर रोजा रखेंगे, अगर आप इकरार करके रोजा रखेंगे, तब आप रोएंगे, तब आपके आंसू जारी हो जाएंगे।
جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے خدا میں کمزور ہوں، اے خدا میں گناہگار ہوں، اے خدا میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں سست ہوں، میں قاہر ہوں، میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں۔ اور جب دل سے اقرار ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت بالکل ویسی ہے جیسے کہ کلام لے کر اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو دکھ دینا، دکھوں میں سے گزرنا، اذیت میں سے گزرنا۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم روزے کو سمجھیں اور روزہ رکھیں تو ہم اگر حقیقی معنوں میں روزے میں ہیں تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اپنے ملک کے لیے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اعلیٰ قیادت کے لیے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے ملک کے سربراہ کے لیے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے تمام انتظامیہ کے لیے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اپنے بشپ صاحبان کے لیے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اپنے پادری صاحبان کے لیے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے ڈیکنز کے لیے، ایلڈرز کے لیے، تمام انتظام کرنے والوں کے لیے جو کلیسیا کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم ہاتھ اٹھائیں گے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کہ اے خدا مجھ پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے شہر پر رحم فرما، ہمارے قوم کے لیڈران پر رحم فرما۔ ہاتھ اٹھائیں اور اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ آج مجھے انفرادی طور پر، آپ کو انفرادی طور پر دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے خاندان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آئیں جھک جائیں، آئیں گرہ ازاری کریں، آئیں واویلا کریں، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کے حضور عاجز ہونا بہت ضروری ہے، خدا کے حضور جھکنا ضروری ہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کرنا ضروری ہے، اور ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اور دیکھیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا، خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ کب؟ جب آپ روزہ میں ہوں گے اور اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ روزہ جان کو دکھ دینا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جان کو دکھ نہیں دیتے، ہم صرف دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، اور خداوند کو ایسا روزہ پسند نہیں ہے۔ نکالیں حبار کی کتاب 16 باب اور اس کی 29 آیت، اور دوسرا کوئی نکالے گنتی 29 باب 7 آیت۔ اب حبار کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 29 آیت، اور گنتی کی کتاب اس کا 29 باب اور اس کی 7 آیت۔ آمین۔ جی پڑھیں۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بدباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ آمین۔ دوسری آیت پڑھیں گنتی کی۔ پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ آمین۔ دونوں آیات میں جو پرانے عہد نامہ کی آیات ہیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کون سا مہینہ ہے؟ 7واں مہینہ۔ تاریخ کون سی ہے؟ 10ویں تاریخ ہے۔
7वें महीने की 10वीं तारीख को तुमने क्या करना है? मुकद्दस मजमा फराहम करना है और उस दिन आपने रोजा रखना है। बनी इस्राएल को हुक्म दिया गया। और रोजा कैसे रखना है? अपनी जान को दुख देना है, रोना है, वावेला करना है, हाथों को उठाना है, दुआ करना है, अपने सर में राख और खाक को डालना है, ऊंधे मुंह हो जाना है, अपने घुटनों के बल हो जाना है। हकीकी रोजा यही है, जब हम खाक और राख में बैठ जाते हैं। बाबर की असीरी के बाद रोजे का जिक्र मिलता है। असीरी के बाद 4 और सालाना रोजे मुकर्रर किए गए बनी इस्राइल के लिए। ज़करिया की किताब 8 बाब और उसकी 19 आयत में इन 4 रोजों का ऐलान किया गया और ये 4 रोजे मुकर्रर कर दिए गए। कौन कौन से हैं जी? पढ़े जरा। ज़करिया की किताब 8 बाब और उसकी 19 आयत। ये रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और पुरनी का दिन और शादमानी की ईद होगा। इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। आमीन। ये जो 4 रोजे हैं, चौथे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने और 10वें महीने, ये खुशी और खुरमी के लिए हैं, शादमान होने के लिए हैं। खुदा जब आप वबेला करेंगे, जब आप आंसू बहाएंगे, जब आप खुदा के हुजूर अपने आप को सुपुर्द करेंगे, आप दुआएं करेंगे, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा और फिर खुदा आपको कामयाबी, कामरानी अता करेगा, सरफराजी अता करेगा, खुदा आपको शादमान करेगा। तो शादमान जब आप होंगे, कामयाब जब आप होंगे, तो उस वक्त भी आपने खुशी के लिए रोजा रखना है, शुक्रगुजारी के लिए रोजा रखना है। आमीन। आस्तर की किताब 9 बाब उसकी 31 आयत में हमें रोजे कायम करने का इशारा मिलता है। पुराने अहदनामा में जी आस्तर की किताब 9 बाब उसकी 31 आयत। जिसने निकाला पढ़े। ताकि पुरीम के इन दिनों को उनके मुकर्रर वक्त के लिए बरकरार करे, जैसे यहूदी मरकी और आस्तर मरका ने उनको हुक्म किया था, और जैसा उन्होंने अपने और अपनी नस्ल के लिए रोजे रखने और मातम करने के बारे में ठहराया था। आमीन। यहाँ पर ये रोजे मुकर्रर किए जाने का इशारा मिलता है कि उन दिनों में, पुरीम के दिनों में तुमने रोजे रखने हैं। इसलिए इनफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर आस्तर ने अपने लिए, कौम के लिए रोजा रखा, उसकी सहेलियों ने रोजा रखा, कौम ने रोजा रखा और खुदा ने उनको कामयाबी अता दी। आमीन। खुदा ने उन्हें उस मुश्किल से निकाल लिया। खुदा आज भी मेरी और आपकी मदद करता है। खुदा आज भी मुझे और आपको मुश्किलों से निकालना चाहता है, परेशानियों से रहाई देना चाहता है, मुसीबतों से आजाद करना चाहता है, बीमारियों से आजाद करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम अपने खुदा के साथ गहरे रिश्ते को अस्तिवार करें। और गहरे तल्लुक के लिए रोजा बड़ा अहम है, क्योंकि जब आप रोजा रखते हैं आप खुदा से बात करते हैं, खामोशी में भी आप बात करते हैं, आप बोल के भी खुदा के साथ बात करते हैं और फिर खुदा बोलता है, फिर खुदा फरमाता है। 1 मिनट जरा खामोश रहिए।
1 मिनट सब खामोश हो जाए, आंखें बंद करें। 1 मिनट सब आंखें बंद करें और खामोश हो जाए। सब खामोश हो जाए, आंखें बंद रखें। कोई भी बोलो, जोर से बोलो, कुछ भी बोलो, जोर से बोलो। सारा जलाल यीशु नाम को मिले। आमीन। आपने किसकी आवाज सुनी है? आपने किसकी आवाज सुनी है? साइमन की आवाज सुनी है ना? किसी और की तो आवाज नहीं सुनी। क्यों सुनी है आपने साइमन की आवाज? क्योंकि आप साइमन की आवाज को पहचानते हैं। जब आपका तल्लुक, आपका रिश्ता, आपका जो राबता है खुदा के साथ होगा, तो खुदा बोलेगा। खुदा बोलेगा और उसी से बोलेगा जो उसकी आवाज को पहचानता है। जो उसकी आवाज को नहीं पहचानता वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। हमारी अपनी आवाज है, खुदा की आवाज है और शैतान की भी आवाज है। इसलिए खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करें, अपने आप को उसके सुपुर्द करें, ताकि आप उसकी आवाज को सुन सकें, ताकि आप उसकी आवाज को पहचान सकें, ताकि जब आप पुकारें और वो आपको क्या दे? जवाब दे। जब आप रोजा रखते हैं, दुआएं करते हैं, तो कहा जाता है और सुना जाता है। हम बोलते हैं, खुदा सुनता है, और एक वक्त आता है खुदा क्या करता है? बोलता है। खुदा क्या करता है? बोलता है। अय्यूब की किताब वाला बेटा हुआ निकल रहा था। जिसने निकाले पड़े। ऐ अय्यूब तवज्जो से मेरी सुन। बस, ऐ अय्यूब तवज्जो से मेरी। अब आपने अय्यूब नहीं कहना, अपना नाम लेकर कहना है। अपना नाम लो और कहो खुदा से, कहें ऐ साइमन तवज्जो से, ऐ वेरोनिका तवज्जो से। खुदा बोलेगा, और जब तक आप तवज्जो नहीं करेंगे आप सुन नहीं सकेंगे। जब तक आप उसको अपना मरकज नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी निगाहें यीशु पर नहीं होंगी, जब तक आप तैयार नहीं होंगे उसकी आवाज सुनने की। खामोश रह और मैं बोलूंगा। कौन फरमा रहा है? खुदा बोल रहा है। खुदा कह रहा है कि तू खामोश रह और मैं बोलूंगा। हम क्या करते हैं? अक्सर हम दुआ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब खुदा के बोलने का वक्त होता है हम उठ के चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। हम सिर्फ कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। दुआ रोजे में ठहरना होगा, आपको कहना भी होगा और सुनना भी होगा। और जब आप सुनेंगे तो फिर आप खुदा की आवाज को पहचान सकते हैं कि ये तो खुदा की आवाज है मेरे लिए। खुदा आपको कलाम के जरिए से सिखाएगा, खुदा कलाम से आपके साथ बोलेगा। लेकिन जब तक आपको और मुझे उसकी आवाज की पहचान नहीं होगी, मैं और आप उसकी आवाज को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि ये आवाज की पहचान उस वक्त होगी जब मेरा और आपका रिश्ता उसके साथ गहरा होगा, जब हम उसके साथ पैवस्त होंगे, जब हम उसके साथ एक सोबत होंगे, तब हम उसकी आवाज को पहचान सकेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, अपने आप को हकीकी रोजे में डालें। दिखावे के रोजे हर साल लोग रखते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सारा साल रोजे रख सकते हैं, सारा साल 365।
अगर हमारा रिलेशन खुदा के साथ होगा तो फिर 365 दिन हम रोजा रख सकते हैं। आमीन। नेहमिया ने रोजा रखा, उसने अपनी कौम के लिए रोजा रखा, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, उसने अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार किया, उसने अपनी कौम के गुनाहों का इकरार किया, उसने अपने हाकिमों के गुनाहों का इकरार किया और खुदा ने उसकी आवाज को सुन लिया और फिर खुदा ने उसके साथ कलाम किया। जब हम इकरार करते हैं गुनाहों का शख्सी तौर पर, अपने बाप दादा के गुनाहों का, अपनी कौम के गुनाहों का, खुदा सुनता है, खुदा जवाब देता है, फिर खुदा ही बहाल करता है। दानियल ने भी रोजा रखा 21 दिन तक, और वो भी अपनी कौम के लिए, अपने लिए, अपने अजदाद के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए वो अकेला करता रहा, रोता रहा। उसने अपनी जान को दुख दिया और खुदा ने फिर अपने मुंसूब को भेजा, फरिश्ता को भेजा और वो उसके पास आया और खुदा ने उसको तकवीयत दी, उसको जोर दिया, उसको कुव्वत दी और उसको वो रोया समझाई। जब हम शख्सी इज्तिमाई रोजे रखेंगे खुदा हमारी मदद करेगा। आमीन। दाऊद ने अपने बेटे के लिए 7 दिन का रोजा रखा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद खुदा की ताबेदार हो जाए, फरमाबरदार हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद मसीह में बढ़े, तो अपनी औलाद के लिए रोजे रखें, रोजे रखने शुरू करें, दुआ करना शुरू करें औलाद के लिए, अपने बच्चों का नाम ले लेकर दुआ करें। खुदा आपके बच्चों की तरबियत करेगा, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। यूना ने मुनादी की, यूना ने मुनादी की और क्या मुनादी की उसने? हाँ जी, अदालत का बताया कि तुम्हारी अदालत का दिन आ चुका है। लेकिन उन लोगों ने जब ये सुना कि अदालत हमारी होने वाली है तो उन्होंने क्या किया? तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की। लोगों ने रोजा की मुनादी कर दी। जब बादशाह तक खबर पहुंची तो बादशाह ने भी अपने आप को खाकसार बना दिया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़कर खाक और राख में बैठ गया और यहां तक ऐलान कर दिया कि ना गल्ला और ना ही कोई बछड़ा बच्चा जानवर का भी चारा खाएगा, पानी पिएगा। यहां तक इंसान और हवान सब का रोजा शुरू हो गया। इकरार उन्होंने करना शुरू कर दिया, अपने अपने गुनाहों पर वावेला करना शुरू कर दिया। उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिए, दुआ करना शुरू कर दी, राख और खाक में बैठ गए और खुदा ने उनकी तौबा को क्या किया? कबूल किया। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और जो रोजा है ये मुझे और आपको तौबा की तरफ माइल करता है। आमीन। रोजा खुदा की मदद और हदायत हासिल करने के लिए भी रखा जाता है। और यशाया 58 में 3 से 10 आयत में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि खुदा कैसा रोजा चाहता है, कि खुदा कैसा रोजा चाहता है कि हम रोजा रखें और रोजा रखकर अपने आप को खुश ना करें, रोजा रखकर हम जुल्म ना करें, रोजा रखकर हम गाली गलौज ना करें, रोजा रखकर हम मारपीट ना करें, रोजा रखकर हम लड़ाई झगड़े ना करें, रोजा रखकर हम अपनी ही खुशगपियों में मसरूफ ना रहें, रोजा रखकर हम लोगों को दिखाएं ना। रोजा खुदा चाहता है कि हम गरीबों की मदद करें,
खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए। खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि जो नंगे हैं उनको कपड़ा बनाया जाए। खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि लोगों पर तरस खाया जाए। खुदा ये नहीं चाहता कि हम खुश रहें। खुदा ऐसा रोजा नहीं चाहता कि हम रोजा रखें और अपनी मौज मस्ती में रहें और लड़ाई झगड़े करें। खुदा चाहता है कि हम तरस खाएं, हम रहम करें। आमीन। और नया नामा भी अभी हम जो हवाला हमने पढ़ा तो उसमें भी यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी है कि हम रोजा रखें तो हमारा चेहरा उदास नहीं होना चाहिए, बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे सर पर क्या होना चाहिए? तेल होना चाहिए। हमारे चेहरे पर शादमानी होनी चाहिए, हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। और जब हम रोजा रखें तो लोग हमें रोजादार न जाने बल्कि खुदा बाप जो पोशीदगी में है वो हमें रोजादार जाने। और लिखा है कि जो अपना चेहरा उदास बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, दिखावे का रोजा रखते हैं, वो अपना जल पा चुके। लेकिन जो खुदावंद के मुताबिक रोजा रखेगा, खुदा के लिए रोजा रखेगा, वो खुदा से अजर पाएगा। आमीन। कटर जो फरीसी थे वो हफ्ता में कितने दिन रोजा रखते थे? हाँ जी, कितने दिन वो रोजा रखते थे? 2 दिन रोजा रखते थे। कौन कौन सा दिन था? हाँ जी, कौन कौन सा दिन था? एक जुमेरात और दूसरा पीर। शाबाश। पीर का दिन और जुमेरात का दिन फरीसी ये 2 दिन रोजा रखते थे। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि अगर वो 2 रोजे एक हफ्ते में रखते हैं तो एक महीने में 4 हफ्ते हैं तो कितने हो गए? 8 रोजे उनके हो गए। तो अगर उसको 12 से आप जरब दे दो कितने बन गए? हाँ जी, 96 वो रोजे रखते थे। और इसके अलावा जो मुकर्रर रोजे थे वो भी वो रखते थे। इसके अलावा जिनका हमने जिक्र पढ़ा सुना आपने, वो रोजे भी वो रखते थे। तो वो इसका मतलब वो तो हमसे फिर ज्यादा रोजे रखते थे। और हम रवायती रोजे रखते हैं और अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो रवायती भी नहीं रखते। रोजा रखना बहुत अच्छा है। और कई जो खुदाप्रस्त यहूदी थे वो उससे भी ज्यादा रोजे रखते थे। खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। और हम मत्ती की अंजील उसका 4 बाब पहली 2 आयत में ये पढ़ते हैं कि रूह यीशु को कहां ले गया? कौन ले गया? रूह की मर्जी ये है कि हम फाका करें। रूह की ये मर्जी है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। रूह की ये मर्जी है कि हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। रूह की मर्जी ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। रूह की मर्जी ये है कि हम अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार करें। रूह की ये मर्जी है कि हम मुल्क के हाकिमों के लिए दुआ करें और उनके गुनाहों का इकरार करें। अपनी कौम के लीडरान के गुनाहों का इकरार करें। अपनी कौम के लिए हमें इकरार करना होगा, हमें फाका करना होगा। और ये फाका, ये रोजा जब तक रूह आपके साथ नहीं है और जब तक आप रूह से मामूर नहीं हैं, आप नहीं रोजा रख सकते। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि रूह से मामूर हो जाओ, अपने आप को खुदा के ताबे करो, खुदा की सोबत में रहो। जब हम खुदा की सोबत में रहेंगे, खुदा के रूह के साथ कनेक्टेड रहेंगे, रूह से मामूर रहेंगे, आप फिर जरूर रोजा रखेंगे। आमीन। आज मुझे और आपको क्या रोजा रखने की जरूरत है? मेरा आपसे सवाल है, क्या हमें रोजा रखने की जरूरत है? जरूरत है कि नहीं?
कोई शख्स भी जो यहाँ बैठा है दुखों से खाली नहीं है, बीमारियों से खाली नहीं है। हर जिस्म में कोई ना कोई बीमारी है, हर जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, हर जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी है, हर जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत है, हर जिंदगी में गुनाह है, हर जिंदगी में नापाकी है, हर जिंदगी में नाराजगी है। खुदा की नजर में कोई शख्स पाक नहीं है। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से। अगर मैं और आप इसी हालत में रहेंगे तो मैं और आप कभी आसमानी बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते। खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक हो जाएं। पाक होने के लिए मुझे और आपको यीशु के लहू की जरूरत है। उसका लहू पाक है, बेऐब है, कीमती है। उसके लहू से हमारा कफारा हुआ है, उसके लहू से हमारी कीमत अदा की गई है। जैसे उसने रोजे रखे हैं, उसने फाका किया है। उसने क्यों फाका किया था? उसने क्यों रोजा रखा था? हाँ जी बताएं, यीशु ने किस लिए रोजा रखा था? क्यों उसने फाका किया था? हाँ जी बारहा मैंने आपको बताया। हाँ जी यीशु मसीह खिदमत का आगाज करने वाले थे और यीशु मसीह सलीब के सफर पर चलने वाले थे और इसलिए यीशु मसीह को कुव्वत चाहिए थी। यीशु मसीह को कुव्वत चाहिए थी, इसलिए यीशु ने रखा रोजा। इसका मतलब यह है कि आप उस सफर का आगाज नहीं करना चाहते, आप सलीब उठाना नहीं चाहते, आप दुखों में से गुजरना नहीं चाहते। यीशु ने इसलिए वो कहा है जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे। आपका सफर है, यीशु का सफर था बनी हुई इंसान को गुनाह की गुलामी से आजाद करना, सलीब पर जान देना। और यीशु मसीह ने आपको नई जिंदगी दी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ईमानदारों की जिंदगी, नई जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का, अपनी जिंदगी का आगाज हो जाता है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उस सफर पर गामदान होते हैं। तो यीशु मसीह ने खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश किया, रूह से जंगल में ले गया ताकि आजमाया जाए। और मैं तो आप हर रोज आजमाए जाते हैं, हर रोज हम आजमाए जाते हैं, हर रोज हमारी आजमाइश होती है। मुझे और आपको क्या रोजे की जरूरत नहीं है? हमें हर रोज जरूरत है रोजे की और दुआ की। आज हमें भी शख्सी और इज्तिमाई रोजे रखने की जरूरत है। हमारे मुल्क के हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात सियासी तौर पर बिगड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, आए अपने मुल्क के लिए रोजा रखें, आए इन लीडरों के लिए रोजा रखें, आए इन सियासतदानों के लिए रोजा रखें ताकि इस मुल्क में अमन हो। क्योंकि मसीहों को खुदा ने इसीलिए इस मुल्क में रखा है कि वो अपने पाक हाथों को उठाकर इज्तिमाई रोजे रखें, इनफरादी रोजे रखें मुल्क के लिए, कौम के लिए। मसीह जो हमारे सियासतदान हैं उनके लिए रोजे रखें, गवर्नर्स के लिए रोजे रखें, वुज़रा के लिए रोजे रखें, सूबाई और कौमी असेंबली के मेंबरान के लिए रोजा रखें, इस मुल्क की क़यादत के लिए रोजा रखें। अगर हमारा मुल्क अमन और चैन में होगा, सलामती में होगा, तो हमारी भी सलामती होगी। इसलिए कलाम में लिखा है कि तुम जिस मुल्क में, जिस शहर में रहते हो उसके लिए क्या करो? दुआ करो। कल वाला वो हवाला निकालने जाना, सबके लिए दुआ करने का काम है।
आमीन। आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 2 बाब और इसकी पहली 2 आयत की हम तलावत करेंगे। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ। पौलुस रसूल उस वक्त तीमुथियुस को कह रहा है, और ये कलाम हर जमाना के लोगों के लिए है, आज ये मेरे और आपके लिए है। जी सुने। ये मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। आमीन। अमन और आराम के साथ क्या करें? तो मेरे और आपके लिए जरूरी है कि नहीं मुल्क के लिए रोजा रखना? मेरे और आपके लिए जरूरी है कि नहीं हम सबके लिए रोजा रखें? मेरे और आपके लिए जरूरी नहीं कि हम क्या अपने सब लोगों के लिए, बहनों भाइयों के लिए रोजा रखें? क्या आपके लिए जरूरी नहीं कि आप जो आला की आदत है, लीडरान है, उनके लिए रोजा रखें? खुदा का कलाम मुझे और आपको भी फरमाता है, मेरे अजीजों, हमें रोजा रखना। और जब हम रोजे रखेंगे, तौबा करेंगे और असर पैदा होगा, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं होता। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी मदद करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बीमारियों से शिफा दे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके घराने को सरफराज करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दुरुस्त राह पर चले, तो आए इन सब बातों के लिए क्या करें? रोजा रखें। रोजा मुझे और आपको खुदा से मुलाकात का वक्त फराहम करता है। अगर आप रोजा रखेंगे तो हमारी जो दुआया जिंदगी है, रूहानी जिंदगी है, वो बहाल होती जाएगी, वो बहाल होती जाएगी। अगर रोजा नहीं रखेंगे, दुआ नहीं करेंगे, हमारी जिस्मानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी अबतर होती जाएगी। अगर हम कलाम नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं करेंगे, हम दोस्ताइश नहीं करेंगे, हमारी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी अबतर होती जाएगी। इसलिए इन बातों को अपनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहाल हो, आपके खानदान में बहाली आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका खानदान, आप रूहानी तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं बीमारियों से शिफा पाएं, अगर आप चाहते हैं कि मुसीबतों से रहाई पाएं, दुखों से रहाई पाएं, परेशानियों से रहाई पाएं, तो आए, हाथ उठाएं, रोजा रखें और क्या करें? दुआ करें। रोजा आपको बदी से बचाता है, रोजा आपको लालच से बचाता है, रोजा आपको हर गुनाह से बचाता है। क्योंकि उस वक्त हम परहेज कर रहे होते हैं, हर चीज से परहेज कर रहे होते हैं। आए, आज से अहद करें कि हम रोजा रखेंगे, ताकि हमारी रूहानी जिंदगी भी परफेक्ट हो, और हमारी रूहानी जिंदगी के साथ साथ हमारी जिस्मानी जिंदगी भी परफेक्ट हो, और हम अमन के साथ इस मुल्क में जिंदगी बसर करें। खुदा आप सबको बरकत दे।